علیکم ورحمۃ اللہ. برادر میری آواز بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے ہم پر الحمدللہ گزشتہ کورس قرآن کورس 1 میں جس انداز میں انتہائی کم وقت میں آسان اور دلچسپ طریقے سے جدید طریقے سے ہم نے قرآن کو سیکھا ہے اور صرف 20 گھنٹوں کے مختصر وقت میں مکمل نماز، کچھ صورتیں، اذان، اقامت، اذکار نماز، ان کو سمجھتے ہوئے قرآن کے 50% بلکہ اس سے بھی کچھ زائد الفاظ الحمدللہ ہم سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں. اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اب ہم قرآن کورس 2 کا حصہ بن چکے ہیں. یعنی نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے بلکہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سفر کو جاری و ساری رکھ سکیں انشاءاللہ. آج پہلے سبق کے گرامر کی دہرائی کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. کمزور افعال کا تعارف ہم سمجھیں گے. صفحہ 1 اشارہ A. جیسا کہ ہم سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس پوائنٹ کو ہم سبق کے A پارٹ میں سمجھ چکے ہیں کہ کورس 1 کی طرح کورس 2 میں بھی کچھ بہت ہی دلچسپ اور آسان ٹیکنیکس ہمیں سکھائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. جن میں ایک یہ ہے کہ ہاتھوں کے اشاروں سے تو ہم کورس 1 میں بھی سیکھ رہے تھے. یہاں پر ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ساتھ ہم اس سبق کے 5 اسباق کو سمجھیں گے، یاد کریں گے اور اس کے بعد اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان رہے گا. اور الحمدللہ ہر سبق یعنی قرآن کے ہر صفحے کے مزید 4 حصے ہیں اور ہر حصے کو ایک اشارے کا نام دیا گیا ہے، اشارہ، اور اس کی جمع ڈیفینیٹلی اشارات. پہلے سبق یعنی پہلے صفحے کے 4 اشارات ابھی ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وہ کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. الحمدللہ جبکہ ہم قرآن کو باقاعدہ سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں، قرآن کی بیسکس ہم کورس 1 میں سمجھ چکے ہیں، ہر صفحے پر آنے والے بہت سارے الفاظ ہم سمجھنے کے قابل ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آگے چلتے ہوئے، کیونکہ اب ہم کورس 2 سے باقاعدہ قرآن کو ترتیب میں سمجھنا شروع کر رہے ہیں، قرآن کے پہلے پارے سے پہلے صفحے کا ہم آغاز کر چکے ہیں. ہمارے لیے جاننا ضروری ہے قرآن کے اسٹرکچر کو. تو یاد رکھیں ذہن میں کہ قرآن کی ہر سطر یعنی ہر لائن میں اوسطاً یعنی تقریباً 9 الفاظ موجود ہیں، جن میں سے 3 اسم ہوتے ہیں، 3 افعال، 3 فعل ہیں اور 2 حرف ہیں. بالترتیب ان کی جمع ہے اسماء، افعال اور حروف. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ غالباً وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی اور حرف بھی. الحمدللہ تو اس ترتیب سے ہمیں سمجھ آتا جائے گا کیونکہ یہ 3 الفاظ ہم نے اچھے طریقے سے سمجھے ہیں، بہت پریکٹس کی ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انہی کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی ہم قرآن کو گریجولی سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ. یہ دیکھیں اگر ہم قرآن سے الفاظ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر ہمیں اسما نظر آئیں گے یعنی نام نظر آئیں گے، مختلف جگہوں پر ہمیں فعل نظر آئیں گے یعنی ایسے الفاظ جن سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے. اور اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں اسی طرح سے حروف ہر صفحے پر نظر آئیں گے جو کہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں جملہ بنانے کے لیے. الحمدللہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تمام جو ہمارے الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ مکمل ہو جاتے ہیں اسم، فعل اور حرف کو ملا کر. تو آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کریں، شارٹلی مجھے ذرا بتا دیجئے اسم، فعل اور حرف کی تعریف کیا ہے. شارٹلی کوئی بتانا چاہے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجئے. جی سسٹر سعادت طاہر اپنا مائک آن کیجئے. وعلیکم السلام. اسم کیا ہے؟ اسم کسی بھی چیز کا نام. اوکے اور ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سسٹر عفت آرا آپ بتائیے اسم کی تعریف آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اسم کسی چیز، جگہ کا نام اور کسی صفات بھی جو ہیں وہ بھی اسم میں شامل ہیں.
جی माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया है. सिस्टर समरा आसिफ, आप मुझे बता दीजिए फेल किसे कहते हैं? फेल किसी काम करने को कहते हैं, यानी कि आपको काम करना है तो फेल कहते हैं. जिसे कोई काम पता चल रहा है, काम का होना या करना पता चल रहा है. जज़ाकल्लाह. हर्फ किसे कहते हैं? सिस्टर आयशा अरशद, अपना माइक ऑन करके बताइए. हर्फ होता है जो दो सेंटेंसेस को ना ज्वाइन करता है, जैसे मिन इला, और इसमें ना कोई जमाना नहीं पाया जाता, जैसे फेल में पाया जाता है ना, तो इसमें जमाना नहीं. ओके फाइन. ये हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि वो तमाम अल्फाज जो कि इस्म या फेल नहीं है वो हुरूफ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है दोहराई करने में, माशाल्लाह. तो ये देखिए स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद हैं ये स्टेटमेंट्स, इनको ध्यान से देखिए, इंतहाई इंटरेस्टिंग है और हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है. हुरूफ जो कि हर्फ की जमा है, अभी हम इसके बारे में सिस्टर हमें बता भी रही थी. इतना आसान है हुरूफ के बारे में, जब हम एक बार समझ लेंगे हुरूफ की जो शक्ल है वो कभी बदलेगी नहीं. जैसे ला है, मा है, मिन, फी, बहुत सारे हुरूफ हम पढ़ चुके हैं अब तक, कभी भी उनकी शक्ल नहीं बदलेगी. अगर किसी हर्फ का एक मानी या एक से ज्यादा मानी जो हम याद कर चुके हैं वो उसी फॉर्म में रहेंगे. ठीक है, तो ये बहुत आसान है. इसी तरह से जो अस्मा है, अस्मा इस्म की जमा है और डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि ये कोई भी नाम है या किसी चीज की सिफ्त है, किसी की सिफ्त है. ठीक है, तो इसमें भी आप खुद अपनी जुबान में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी नाम हो तो उसमें क्या तब्दीली हो सकती है. सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये कि वो चीज जिसकी बात हो रही है वो या वाहिद होगी या जमा होगी, एंड दैट्स इट. इसके अलावा कोई और चेंजिंग इसमें नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह. अफआल फेल की जमा है और जैसा कि अभी सिस्टर बता रही थी कि किसी भी काम को कहते हैं ऐसे अल्फाज जिनसे कोई काम वाजे हो रहा हो, काम का करना या होना, वो फेल होते हैं. फेल की जमा अफआल है. अफआल असली चैलेंज है जो हमें समझना है. हम लोग अक्सर ये आपस में डिस्कस करते हैं कि कुरान को बस सिंपली तर्जुमे को पढ़ते जाएं, तो यहाँ पर टेबल्स की आखिर इतनी जरूरत क्या है कि हम उस पर इतना जहन लगा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं. तो यहाँ ये जहन में रखिए, डेफिनेटली कुरान पाक को समझना हमारा मकसद है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कोई भी फरमान यहाँ पर अल्लाह का अगर वजूद है कुरान में, तो उसमें डेफिनेटली कामों की बात हो रही है, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ भी किसी भी फॉर्म में. तो इसलिए कामों के लफ्जों को भी समझना जरूरी है. और यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है कि ये असली चैलेंज है. असल चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि कुरान को समझने की जो काविश है उसमें हमें ज्यादा मेहनत इस पर करनी है. क्यों? क्योंकि अफआल की शक्लें बदलती हैं इन द सेंस, जैसे उर्दू जबान में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम अभी कुरान सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं. ये काम सीखना सिखाना एक काम है. हम माजी में हमने एक कोर्स सीखा, अभी हम कोर्स 2 सीख रहे हैं, आगे हम कोर्स 3, 4, 5, 6, 7 सीखेंगे इंशाल्लाह. तो देखिए उसकी शक्लें बदल गई ना, काम की जमाने के हिसाब से बदल गई. या किसी को काम करने का कहा जा रहा है, आप सीखें, आप ये चीज ना सीखें. ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी शक्लें होती है. इसीलिए काम के जो अल्फाज हैं यानी जो अफआल है वो हमारे लिए असल चैलेंज है. तो पूरे दिल से अल्लाह के साथ मोहब्बत से हमने ये, अगर हमें चैलेंज मिला है तो हमें इसको पास करना है इंशाल्लाह. ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करनी है, इस बात को ज़हन में रखें. तो फेल की ही बात हो रही है एक्चुअली कोर्स 2 में. फेल के एग्जाम अगर हम जाने, सेहतमंद अफआल को हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं. फतह, नसर, दौराबा, समिया. ठीक है, इन चारों के मानी कोई बताएगा आप में से? हैंड रेज कीजिए. इन चारों के मानी बता दीजिए मुझे. जी सिस्टर समरा आसिफ. फतहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना. माशाल्लाह. और ये कौन सा टेबल है? ये सेहतमंद अफआल है. सेहतमंद अफआल है. और ये कौन से टेबल से लिए गए हैं? आई मीन हमने मादी पढ़ा, मुदारे पढ़ा. जी माजी है, फेल माजी है. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ये 4 सेहतमंद अफआल जिनको हमने बाब कहा, ये अबवाब हैं जिनको हमने सीखा है और इनके पैटर्न पर फिर मजीद टेबल्स भी सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये है 3 हरूफ वाले अफआल, क्योंकि इनमें 3 हरूफ मौजूद हैं. अब जो अगले अफआल जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं उनको बताने से पहले ये स्लाइड जरा ध्यान से देखें, जिसको माशाल्लाह हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम सिर्फ उसकी दोहराई कर रहे हैं. तो देखिए कि कमजोर हरूफ को जान लें. जितने भी हुरूफुल मुफरिदात हैं कुरान में, जिस तरह हम उर्दू में अलिफ ता ये पढ़ते हैं, हुरूफ तहजी में, इस तरह जो अरबी में पढ़ते हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि कमजोर कंसीडर होते हैं, बाकी सब सेहतमंद हैं. ठीक है, जो कमजोर हैं वो कौन से हैं? स्क्रीन पर देखिए रेड कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, वाव, या, अलिफ. ठीक है, इनको याद रखने के लिए
एक्सपर्ट्स ने माशाल्लाह इतना अच्छा प्लान किया हमारे लिए कि हमें ये याद रहे। देखें, कोई भी शख्स अगर किसी को चोट लग जाए या कोई बीमार हो तो वो उस तकलीफ से क्या कराते हुए वो किस तरह की आवाजें उसको निकालता है, या वो कहेगा ऊ या कहेगा ई या कहेगा आ, अनकॉन्शियसली मुझसे इसी तरह की आवाजें निकलती है अगर कोई चोट लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें, क्योंकि वाव की आवाज जो है वो पेश की तरह से ऊ के अंदाज में होती है, इसी तरह या की आवाज सिंपली जेर की आवाज की तरह होती है, इसी तरह जो हमें अलिफ यहाँ नजर आ रहा है उसकी आवाज जो है वो जबर के जैसे होती है अगर हम एराब के साथ इनको मिलाकर समझें। ठीक है, तो इस निस्बत से हमें याद रखना है कि ये कमजोर हुरूफ है 3, और ये कमजोर हुरूफ ऐसे कमजोर हुरूफ हैं कि अगर ये किसी फेल का हिस्सा बन जाएं तो उस फेल को भी कमजोर हर्फ कहा जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, लेकिन छोटी सी कोई चोट लग जाए, बहुत मामूली सी, पूरी तरह हम मुकम्मल सर से पांव तक सेहतमंद हैं, मामूली सी चोट लगने से भी हम पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब तक कि वो चोट ठीक ना हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो कमजोर हर्फ है वो एक हर्फ ही भी चाहे कमजोर हो किसी फेल में, लेकिन वो पूरे फेल को हम कमजोर कहेंगे क्योंकि वो कमजोर ही कंसीडर होगा, वो सेहतमंद कंसीडर नहीं होगा। जैसे यहाँ वहाबा, वादा, कौला हमारे सामने स्क्रीन पर है। 3 हुरूफ वाले अफआल हैं सेहतमंद, ये ब्लू कलर में है जिनको हम कोर्स 1 में सीख चुके हैं। कमजोर जो नजर आ रही है वो इंशाल्लाह हम कोर्स 2 में सीखेंगे, सो उनके लिए तैयार हो जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 अल्फाज को सिर्फ 8 अल्फाज समझकर अंडर एस्टिमेट मत करें। ये 8 अल्फाज कुरान में तकरीबन 18,000 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इन 8 अल्फाज के टेबल्स को अगर हम समझते हैं, उनके पैटर्न्स को समझते हैं, तो कुरान के 18,000 लफ्ज अल्फाज समझने के हम काबिल होंगे। तो समझिए कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। इंशाल्लाह जैसे हमने पूरी तवज्जो से और शौक से और मेहनत से सेहतमंद अफाल के टेबल्स को याद किया है, अब हम कमजोर अफाल पर उसी तरह से कोशिश करेंगे। और ये देखिए कि किस तरह से ये कुरान में इतनी ज्यादा बार आए हैं। तकरीबन हर लाइन में एक सेहतमंद फेल और एक कमजोर फेल मौजूद है माशाल्लाह। तो अगर हम समझेंगे तो हमें हर लाइन के एक एक लफ्ज तो गारंटी हो जाएगी कि हमें समझ में आ रहे हैं इंशाल्लाह, उनका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। इसके अलावा मजीद 30 के जो है वो अफआल हैं, उनकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी इस पर जो है वो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मजीद से आपको पता चल रहा होगा कि इजाफा है। पहले हमने सिर्फ 3 हुरूफ वाले अफआल पढ़े हैं, अब उसमें इजाफा होगा और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, और वो भी आसान ही लगेंगे अगर हम चीजों को साथ साथ समझेंगे। अभी हम इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई चीज भी अगर अपने वक्त से पहले सीखी जाए, बेस उसकी ना हो, तो वो चीज वैसे ही मुश्किल लगती है। हम अपने सीक्वेंस में चलते हैं, इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में हम इसको भी सीखेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6 टेबल्स बेसिकली हमें नजर आ रहे हैं जो इस कोर्स में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं, राइट। इनमें क्या फर्क नजर आ रहा है? पहले 2 जो है वहाबा, वादा अफआल हैं, इनका पहला लफ्ज कमजोर है शुरू में, फिर सेकंड जो अफआल है कौला, ज्यादा, दरमियान वाला हर्फ कमजोर है, फिर दआ और हदा, इनका आखिर वाला हर्फ कमजोर है जिसको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है कि कमजोर अफआल 3 कंडीशन में हो सकते हैं। हमें देखना होगा कि उसके शुरू में कमजोर हर्फ है, दरमियान में या फिर आखिर में। और इनके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से टेबल्स बनेंगे जो हमने सबसे पहले कोर्स 1 में फ़ाला का टेबल हमने सीखा था, और उसी के बेस को, टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हुए फिर हमने 4 अब्वाब सीखे थे। तो फ़ाला के टेबल जैसे ही ये टेबल बनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होगी क्योंकि कमजोर हुरूफ आ चुके हैं। ठीक है, तो कमजोर हुरूफ के आने की वजह से जाहिर है क्योंकि वो कमजोर हैं तो वो रूल्स को थोड़ा सा हमें मजीद समझना होगा, कुछ रूल्स के साथ कुछ उसके कुछ जो नई चीजें हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तो बहुत छोटी छोटी मामूली तब्दीलियों के साथ इंशाल्लाह ये टेबल्स भी हम समझ लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बहुत बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई ये जो 4 टेबल्स हैं इनको इस मिसाल के साथ एक दफा बता दे। हैंड रेज कीजिए, सिंपली आप बता दीजिए कि इनको हम कैसे पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। सिस्टर इफ़त कौन करें? जी, फातहा यफ्तहु, अगर कुरान खोलोगे, नासरा यंसुरु तो अल्लाह की मदद आएगी, दाराबा यदरेबु वरना मार पड़ेगी, सामिया यसमु इसलिए सुन लो। माशाल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। तो फतह, नसरा, दौराबा, समिया, इनके मानों को याद रखने के लिए माशाल्लाह इस खूबसूरत कोर्स में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पूरी नसीहत भी है और इसके जरिए से हमें ये अब्वाब याद रहेंगे।
ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس جو نئے افعال ہیں، جو 6 نئے ٹیبلز آج ہم ان سے متعارف ہمیں ہو چکے ہیں آلریڈی، لیکن آج ہم ان کی دہرائی کر رہے ہیں. وہ ہے وعبا، وعدہ، قال، زادہ، دعا، ہدا. وہابہ کا مطلب ہے اس نے دیا یا اس نے عطا کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا. ان دونوں کو ملا کر جملہ بنایا گیا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح قالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا یا اس نے زیادہ کر دیا. تو ان کو ملا کے جملہ کیا بنا ہے؟ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. ان کو ملا کر جملہ بنایا گیا ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی. الحمدللہ یہ ایک نصیحت کے طور پر یہ جملہ یاد رکھیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. تو اس نسبت سے ہمارے لیے کبھی بھی یہ یاد کرنا، دوبارہ سے ذہن میں لانا انتہائی آسان ہوگا اگر ہم اس نصیحت کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی، تو ہماری جو دہرائی ہے اس سبق کی وہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. آج ہمارے کچھ ٹیبلز اس طرح سے نہیں تھے، ہم نے افعال کو سمجھا ہے. کمنگ جو ڈیز ہیں آج کی کلاس سے پراپر ہماری انشاءاللہ ٹیبلز شروع ہونے والے ہیں اور ہم کمزور افعال کی باقاعدہ پریکٹس کریں گے اور ان کو سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین.